فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے قاہرہ مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد نہ بھیجنے کا اعلان۔ خبر ایجنسی حماس کا کہنا ہے کہ 2 جولائی کو طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ حماس کا کہنا تھا کہ مصالحت کار جو بائیڈن کے جنگ بندی ویژن اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں 2 جولائی کو ہونے والے مذاکرات کے دوران طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کے لیے اپنا منصوبہ پیش کریں۔ نئی تجاویز سے اسرائیل کو ہمارے لوگوں کے قتل عام کا بہانہ مل رہا ہے۔ غزہ کے جنگ زدہ علاقے سے فلسطینی بچی نے دنیا کو پیغام دیا کہ میں نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں آپ کو معاف کروں گی۔ کیا عرب ممالک ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری مشکلات دیکھ کر انہیں تسکین ملتی ہے؟ بچی نے کہا کہ یہاں روز ملبے تلے بچے مارے جاتے ہیں جن کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں اور سر کچلے جاتے ہیں۔ بچی نے عرب ممالک کو دنیا بھر کے لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ کی رگوں میں کون سا خون دوڑتا ہے؟ نائب امریکی صدر اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ کے الطابعین اسکول پر گزشتہ روز اسرائیلی حملے سے متعلق میڈیا سے گفتگو میں کملا ہیرس کا کہنا تھا کہ شہریوں کی ہلاکتوں سے گریز کرنا اہم ذمہ داری ہے۔ کملا ہیرس نے زور دیا کہ ہمیں یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی معاہدے کی ضرورت ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی معاہدہ اب ہو جانا چاہیے۔ پاکستان نے اسرائیل کی طرف سے مشرقی غزہ میں الطابعین اسکول پر حملے کی شدید مذمت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بے گھر افراد کو پناہ دینے والے اسکول پر نماز فجر کے دوران ایک حملہ ہولناک، غیر انسانی اور بزدلانہ فعل ہے۔ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 100 سے زائد شہری شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1999 میں 12 اگست کو نوجوانوں کے عالمی دن کے طور پر منانے کی قرارداد منظور کی۔ یوں 12 اگست 2000 سے لے کر اب تک ہر سال ایک نئے تھیم کے ساتھ اس دن کو نوجوانوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد نوجوان نسل کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو درپیش چیلنجز پر اقوام عالم کی توجہ دلانا ہے۔ نوجوانوں کے عالمی دن پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوجوان ہمارے کل کے رہنما ہیں، ملک کا روشن مستقبل تشکیل دیں گے۔ نوجوانوں کے عالمی دن پر پاکستان کے متحرک نوجوانوں کو دل مبارکباد۔ نوجوان ہمارے مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پاکستانی نوجوان ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں کیونکہ وہ مستقبل کے خواب دیکھنے والے اور لیڈر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ نوجوانوں کو صلاحیتیں نکھارنے، خوشحال، پرامن اور ترقی پسند پاکستان کی تعمیر کے لیے مواقع اور وسائل فراہم کیے جائیں۔
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी कर दी। सदर ममलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, जना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों, माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर नहीं हुआ। पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों की तवानाई और सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए बेहद अहम हैं। नौजवान के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के मामान हैं। यूथ की तालीम और तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो हमारी फर्ज है। मुस्लिम लीग की हुकूमत नौजवानों को अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के मौके भी फराहम कर रही है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत हैं और ये मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि इंटरनेशनल यूथ डे पर कौमी हीरो अरशद नदीम और तमाम नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जेवलिन थ्रो मुकाबले के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर साबित किया कि पाकिस्तानी यूथ मेहनती और बासलाहियत है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। सराय के मुताबिक अब तक की वर्किंग के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर तक की कमी मुतवक्की है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपए तक की कमी का इम्कान है। जराये के मुताबिक मिट्टी के तेल में 12 रुपए से जायद कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए। नैको तरासू में मैनेजिंग डायरेक्टर PSO के गैर कानूनी तकर्री के रेफरेंस की समाअत की गई। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म भी दे दिया है। कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि नैब को खत्म करे वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने 9 मई 2023 से मुतालिक 12 मुकदमात में साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी समाअत सानहा 9 मई के 500 से जायद मुल्जिमान को अदालत पेश किया गया। दौरान समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म दिया कि बुशरा बीबी से तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत से किए जाने वाले मुआहदे की एक चेक पर अमल करवाएंगे। लाहौर में जलसे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहता हूँ कि आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी और आपको क्या चाहिए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 9 मई वाक़ये के पीछे बानी पीचाई के 70 जलसे, 9 लॉन्ग मार्च और 2 जहरीली तकरीरें थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने लीगी रहनुमा हिना परवेज़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौसम में दम बर्दाश्त के रवैये का सामना है। ख़वातीन के हकूक़ के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। हज़ारों ख़वातीन के वर्चुअल पुलिस स्टेशन में दादरसी भी होती है। उन्होंने कहा कि हाफिज़ नईम समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल धरना है, तो फिर धरना दे दें। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का एकतरफा फैसला किया तो एमकेएम के लिए हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिंध का गवर्नर एमकेएम का गवर्नर है। मुस्लिम लीग नून के साथ यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान पिसूरी ही रहेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है। हुकूमत अपना सामान बांध रही है। 31 अगस्त से मुकम्मल फाल हो रहा हूँ। रवा माली साल के दौरान इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज की फराहमी की गई। ज़राए के मुताबिक पहली तिमाही के लिए $10 करोड़ रवा माह मौसूल होंगे। तेल खरीदारी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से उधार रकम की पहली किस्त मौसूल होगी। दस्तावेज के मुताबिक तेल खरीदारी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से आइंदा तिमाही में $15 करोड़ मिलेंगे। ये 13 में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को उनके आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद शहीद की नमाज जनाजा और तकफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाले बहादुर पाकिस्तानी कोहे पिमा मुराद सतपारा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जान बहक हो गए। ब्रॉड पेक की मुहिम जोई के दौरान सर पर पत्थर लगने से जख्मी होने वाले पाकिस्तानी कोहे पिमा मुराद सतपारा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। ब्रॉड पीक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जान बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।